इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। Due to adversarial mindset and narrow selfishness, the basic spirit of democracy has been greatly undermined. It affects the parliamentary system as well as development journey of the nation. The people of India have now changed this situation by their decisive mandate. Honorable members, modernization of our armed forces is essential for a strong India. In the last decade, our defense exports have increased more than 18 times to the level of rupees 21,000 crore. Honorable members, for further increasing the participation of youth in the nation building, my government has launched Mera Yuva Bharat campaign. So far, more than 1.5 crore youth have registered for it. Today, our youth is getting new opportunities to move forward in sports as well. Due to effective efforts of my government, young Indian players are winning a record number of medals at global platforms. Honorable members, the Bharatiya Nyaya Sanhita will come into force in the country from 1st of July. During the British regime, there was a mindset to punish the subjects. Now justice will get priority over punishment, which also conforms to the spirit of our Constitution. These new laws will speed up the judicial process. My government has started granting citizenship to refugees under the CAA. Honorable members, the global order is taking a new shape in the third decade of 21st century. The way the world now views India was evident during the G7 summit held in Italy. India has brought the world together on various issues during her G20 presidency. Honorable members, in the ensuing few months, India is going to complete 75 years as a republic. The Constitution of India has stood up to every challenge and every test in the past decades. Even when the Constitution was in the making, there were forces in the world who wished India to fail. Even after the Constitution came into force, it was attacked many times. Today is 27th June. Imposition of emergency on 25th June 1975 was the biggest and darkest chapter of direct attack on the Constitution. The entire country felt outraged, but the country emerged victorious over such unconstitutional forces, as the traditions of the Republic lie at the core of India. My government also does not consider the Constitution of India as just a medium of governance. Rather, we are making efforts to ensure that our Constitution becomes a part of public consciousness. Now, the Constitution has also come into force fully in that part of India, our Jammu and Kashmir, where conditions were different due to Article 370. Honorable members, we all need to always remember that making India a developed nation is the aspiration and resolve of every citizen of the country. It is the responsibility of all of us to ensure that no obstacles come in the way of achieving this resolution. Opposition of policies and obstruction of parliamentary functioning are two different things.
when Parliament conducts business smoothly, when healthy deliberations take place here, when far-reaching decisions are taken, then the people repose confidence not only in the government but also in the entire system. Therefore, I am confident that every moment of Parliament will be fully utilized. Public interest will be given priority. Honorable members, this century is India's century, and its impact will last for 1,000 years to come. Let us all together, with full devotion to our duties, get actively involved in fulfilling national resolutions and make India a developed nation. Best wishes to all of you. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. तो राष्ट्रपति ने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया। 1975 में पूरे देश में हाहाकार था, ऐसा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। आपातकाल संविधान पर सबसे बड़ा प्रहार। संविधान हमारे लिए जन चेतना का हिस्सा। संविधान पर कई बार हमले हुए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया। 1975 में पूरे देश में हाहाकार था, ऐसा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आपातकाल संविधान पर सबसे बड़ा हमला था। संविधान हमारे लिए जन चेतना का एक हिस्सा है। संविधान पर कई बार हमले हुए। तो लोकसभा का विशेष सत्र का आज चौथा दिन। ऐसे में राष्ट्रपति ने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया। 1975 में पूरे देश में हाहाकार था। आपको बता दें कि 25 जून 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी। ऐसे में इमरजेंसी का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साफ तौर पर कहा कि 1975 में पूरे देश में हाहाकार मचा था। आपातकाल संविधान पर सबसे बड़ा हमला था और संविधान हमारे लिए जन चेतना का हिस्सा है। संविधान में कई बार हमले हुए। तो आज लोकसभा के और जिस तरह से सदन की कार्रवाई हुई, आज विशेष सत्र का चौथा दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण आज था। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में आपातकाल पर जमकर प्रहार किया।
1975 का वो वक्त याद दिलाया जब इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लागू हुई थी। 1975 में पूरे देश में हाहाकार मचा था। साथ ही उन्होंने कहा कि आपातकाल संविधान पर सबसे बड़ा हमला था। संविधान हमारे लिए जन चेतना का हिस्सा है। संविधान पर कई बार हमले हुए। बीते दिन हमने देखा किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद आज राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, जिसमें राष्ट्रपति ने बताया कि जो नई सरकार का गठन हुआ है उसके 5 साल का फ्यूचर प्लान क्या कुछ रहेगा। सीधे रुख कर लेते हैं संवाददाता अजय चौहान का। अजय, जिस तरह से आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ, साफ तौर पर अभिभाषण में हमने देखा किस तरह से आपातकाल के उस वक्त को याद किया गया, 1975 को याद किया गया और साफ तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमकर 1975 के उस वक्त पर जब इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लागू हुई थी उस पर निशाना भी साधा। बिल्कुल बता दें, जिससे आज सदन का चौथा दिन था और राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन था। लगातार उन्होंने कई ऐसी बात कही जिससे सरकार के हित में थी और जीडीपी बात चले 2047 का विश्व बनाई बात कही थी। ऐसे में जो राष्ट्रपति का जो भाषण अब वो सामान्यतः उन्होंने लगातार देश के हित की बात कही और लगातार जिससे योजनाएं जो सामने आ रही थी उसको लेकर के उन्होंने कहा था। वो कहा कि 10 साल का जो विकास है 10 साल के बाद 5 साल का जो विकास होगा वो अलग ही देखने होगा। चाहे उसमें महिला का हो, चाहे विदेश के हित का बात हो, चाहे शिक्षा का बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, कई ऐसे योजनाओं की बात करी, जीडीपी की बात करी जिसे संबोधित किया गया। दोनों सदनों का संबोधित कर रही थी। बिल्कुल अजय, जिस तरह से जमकर यहाँ पर इमरजेंसी आपातकाल, जिसे सबसे बुरा वक्त भी भारत के इतिहास में कहा जा सकता है, उसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसका जिक्र किया। और शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कल भी जिस तरह से बीते दिन हमने देखा जब स्पीकर का चुनाव हुआ तब भी इमरजेंसी को लेकर या आपातकाल को लेकर एक प्रस्ताव आया था जिस पर सबने शोक व्यक्त किया। तो जिस तरह से लगातार नई सरकार के गठन के बाद से ही इमरजेंसी को लेकर लगातार कांग्रेस पर सॉफ्ट प्रहार भी करते हुए हम सरकार को देख पा रहे हैं। बिल्कुल भैया, देखिए जिस तरह से राष्ट्रपति मुर्मू ने जो पिछली सरकार थी उस पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि जिस तरह अब जो सरकार चली है लगातार सभी का साथ सभी के विकास लेकर चल रही थी और जिस तरह से ऐतिहासिक जो इस बार वोटिंग हुई थी वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग ही नजारा देखने को मिला था। उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो हमारी सरकार है, यानी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से वह खींच कर आई है, जो पिछली सरकार सवाल खड़ा कि 84 में इमरजेंसी लगाई थी उसमें संविधान का उल्लंघन किया गया था, कई से सामने आई। जिस तरह आज की जो विपक्ष लगातार कहीं संविधान पर सवाल खड़ा करता है उसको लेकर के मुर्मू ने भी सवाल खड़ा कि आखिरकार जिस समय का और आज के समय में हमारे देश की जो उन्नति हुई है, जो देश का जो विकास हुआ है, देश की जो छवि बनी है वो कहीं ना कहीं उस जमाने में नहीं होती जो आज 10 साल के अंदर हुई है। और अब आने वाले जो 5 साल और है इसमें हमारा जो विकास होगा, जो जीडीपी होगी, जो देश का विकास होगा, जो आने वाली नस्ल होगी, जो हमारे जो आने वाले बच्चे होंगे उसको लेकर के काफी कुछ कहा गया। तो याद रखिए कि जिस तरह से 15 साल के अंदर देश का जो नाम रोशन किया गया है इसके अंदर सवाल थे, लेकिन विपक्ष ने उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उसका हंगामा भी आज बिल्कुल। अजय, हमने देखा लोकसभा चुनाव में किस तरह से विपक्ष ने संविधान को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और उसका कुछ फायदा होता हुआ भी विपक्ष को नजर आया। जिसके बाद हमने देखा जब शपथ ग्रहण भी हुआ, जब संसद भवन में जब प्रवेश हुआ, उसके बाद हमने देखा किस तरह से विपक्ष का हर नेता, तमाम विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने मार्च करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की एक कॉपी अपने हाथ में ले रखी थी। उसके बाद जिस तरह से लोकसभा स्पीकर का जब चुनाव होता है तो आपातकाल को लेकर विपक्ष को घेरा जाता है, कांग्रेस को खासकर घेरा जाता है, संविधान का मुद्दा उठाया जाता है। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी आपातकाल का जिक्र राष्ट्रपति ने किया। तो क्या माना जाए, जिस तरह से संविधान को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा था, क्या ये एक पलटवार विपक्ष के ऊपर? बिल्कुल भैया, देखिए जिस तरह से इस समय जो संविधान की बात करते हैं, संविधान को लेकर पूरे तरह चुनाव के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर प्रचार किया गया था। अगर बीजेपी आती है तो लगता है संविधान बदल जाएगा, संविधान बदलने के बाद लोगों की जो जीने की राह है वो खत्म हो जाएंगी। तो लेकिन उसी को लेकर के जिस तरह राष्ट्रपति मुर्मू ने सवाल किया, जब 84 में जब ये हादसा हुआ था उस समय भी संविधान था, तो उस समय संविधान कहा गया था जब खतरा था। तो लेकिन आज के जो लोग हैं वो संविधान को लगातार कहीं खतरा दिखाते नजर आते हैं। ऐसे में संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने साफ साफ कहा कि जो आज का विकास है, जो आज का मॉडल है, जो उनकी सरकार ने काम किया है शायद किसी सरकार ने कभी नहीं किया। क्योंकि डिफेंस की बात करी, हमेशा विदेशों से सामान खरीदा जाता था, लेकिन सिर्फ जो बाहर है, जो देश के अंदर, भारत के अंदर ही डिफेंस का पूरा सामान बनाया जाता है, तो भारत से ही खरीदा जा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये विकास की बात कही गई थी। तो ऐसे में जो प्रधानमंत्री वहां पर बैठे हुए थे, राजनाथ सिंह
गृह मंत्री अमित शाह वहाँ मौजूद थे। तो वही जब बात करती थी तो कहीं ना कहीं संबोधित होता था। ऐसे में जो राष्ट्रपति मुर्मू ने उन्होंने साफ साफ कहा जो हमारी सरकार ने काम किया है और अब जो 10 साल के बाद का जो काम है, जो अब जो सरकार चुन के आई है, वो काम अब दिखेगा कि आखिरकार भारत अब आने वाले समय में कहाँ तक पहुंचेगा। बिल्कुल। अभी जिस तरह से अजय हमने देखा राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, साफ तौर पर जो आने वाले जो 5 साल है, जो फ्यूचर प्लान लेकर यहाँ पर मोदी सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, उसको लेकर कई सारा जो है जिक्र यहाँ पर राष्ट्रपति ने किया। अगर संक्षेप में मैं आपसे पूछूं बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, तो किस तरह से क्या कुछ प्लान लेकर आगे जो है एनडीए की सरकार आगे बढ़ेगी? बिल्कुल देखिए रिया, अगर बात करें जिस तरह से संबंध किया पहले ही जैसे सरकार बनी हो, सरकार 10 साल को भी टेलर था, लेकिन अब जो काम है वो 5 साल में दिखेगा। यानी कि जो नीति थी, जो रणनीति बनाई गई थी, जो विकास की बात करी थी, वो अब उजागर होगा। यानी कि देश को कहाँ पर लेके जाना वो आगे 2027 तक नहीं पता चलेगा। लेकिन 47 का जो विजन रखा गया है वो कहीं न कहीं इस सरकार ने रखा था। लेकिन आने वाले समय में जो विकास होगा, जो रोजगार की बात कर लें या फिर डिफेंस की बात कर लें या फिर पेंशन की बात करें या फिर महिला योजना की बात करें, कई ऐसी योजनाओं को भी टारगेट किया। और जो अगर बात करें महंगाई दर की बात कर लें तो प्रधानमंत्री लगातार महंगाई को कम करने के लिए भी प्रयास कर रहा है। लेकिन ऐसे में भी एक तो सामने बात आ रही है कि राज्य सरकार जिस तरह से लगातार अपने जो टैक्स बढ़ाती है, उस टैक्स को लेकर जीटीवी जो टैक्स उसको उससे न लाने की कोशिश की जाती है। अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी पहल होगी कि देश के अंदर सबसे बड़ा तेल उत्पादन जो होगा, तेल चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, तो उसको लेकर कहीं ना जब अगर सस्ता होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अजय अगर हम इतिहास देखें 2014 और 2019 में जब मोदी सरकार आई, कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, 370 उनमें से एक है। अब की बार जब 2024 में फिर से एनडीए की सरकार रिपीट हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ली है, क्या माना जाए? क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बोला था कि मैं काफी आगे की फ्यूचर प्लानिंग अभी से कर चलता हूं। क्या माना जाए, क्या कोई बड़ा फैसला यहाँ पर लेने की उम्मीद, कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल रिया, देखिए प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते भी हैं लगातार। जिस तरह से जब 2027 में देखा बात करें बड़े अहम फैसले ले गए थे, लेकिन इस बार जो फैसला वो लगातार सदन में भी आवाज उठे गई थी कि तो लागू किया जा रहा है, उनको जगह दिया नहीं। पीओके की बात कर ले तो पीओके को पहले ही राजनाथ सिंह ने और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि वो हमारा हिस्सा और हम लेके रहेंगे। तो हो सकता है जो प्लानिंग चल रही है तो उससे पहले भी प्लानिंग थी, तो जो डिफेंस दिया जाता है या संकेत दिया जाता है तो आने वाले समय में कोई इसी तरीके से बड़ा फैसला लिया जाए। क्योंकि कई कॉरिडोर है बनाए जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ के मंथन का भी मार्ग सामने आ रही है। तो देखिए जो मोदी का विजन है वो 2047 है, ना कि 2024 है। तो आगे आने वाले समय में फ्यूचर के लिए जो जनरेशन जो अगर जो बच्चे आएंगे उसके बारे में सोचा है। तो अब देखना ये होगा कि अब कुल 5 साल आएंगे और उसके अंदर क्या क्या योजना होने वाली, क्योंकि अभी सदन जो चले 8 दिन के लिए बुलाएगा था, लेकिन जब अगला सदन चलेगा तो उसमें क्या फैसला होता है, क्या विपक्ष उसमें साथ देता है या नहीं देता, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं 2014-2019 में हमने देखा किस तरह से 370, 3 तलाक या सीएए, एनआरसी जैसे बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए। अब की बार क्योंकि अब नई सरकार का गठन हो चुका है, जितने भी सांसद हैं उन्होंने शपथ ले ली है, लोकसभा स्पीकर तय हो गए, अब आगे सरकार किस तरह से चलती है, क्या कुछ बड़े फैसले और निर्णय लिए जाते हैं, और विपक्ष क्योंकि अब की बार मजबूत स्थिति में है तो कितनी साकार ये सरकार, कितने सशक्त निर्णय यहां पर लेती है, उस पर सभी की निगाहें। अजय बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते हैं लखनऊ की। 25,000 गाड़ियों पर लगेंगी लाल बत्ती। परिवहन विभाग ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद ये जो स्टिकर है वो जारी होंगे। स्टिकर लगे गाड़ियों पर ही लग सकेंगी लाल बत्ती और हूटर। तो ये बड़ा आपको बड़ी खबर बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां 25,000 गाड़ियों पर लाल बत्ती लगने की तैयारी है। परिवहन विभाग ने शासन को इस चीज का प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद कुछ विशेष स्टिकर यहां पर जारी होंगे और जिन गाड़ियों पर ये स्टिकर लगे होंगे उन्हीं गाड़ियों को आगे लाल बत्ती या हूटर के लिए आगे भेजा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से खबर, यानी उत्तर प्रदेश में 25,000 गाड़ियों पर लाल बत्ती लगने की तैयारी है। परिवहन विभाग ने इसका जो प्रस्ताव है वो शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद इन गाड़ियों पर, यानी जो चिन्हित गाड़ियां होंगी, जो सिलेक्टेड गाड़ियां होंगी, उनके लिए कुछ स्टिकर जारी होंगे, कुछ विशेष स्टिकर उन गाड़ियों में लगाए जाएंगे और जब वो स्टिकर होंगे तभी उन गाड़ियों में लाल बत्ती या हूटर लगने की अनुमति होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, जहां यूपी में
परिवहन विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है जिसके तहत 25,000 गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाई जाएगी। प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद विशेष स्टिकर जारी होंगे। इन गाड़ियों पर विशेष स्टिकर लगाए जाएंगे और उसके बाद ही इन गाड़ियों पर लाल बत्ती या हूटर लगाए जा सकेंगे। आपको बता दें कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, उनकी गाड़ियों में लाल बत्ती या हूटर होते हैं, लेकिन कई बार उस चीज का गलत फायदा उठाकर कुछ और लोग भी हूटर या लाल बत्ती अपनी गाड़ियों में लगा लेते हैं। ऐसे में इस चीज पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है जिसके तहत 25,000 गाड़ियों पर लाल बत्ती लगने की तैयारी है। प्रस्ताव के मंजूर होने पर इन गाड़ियों को विशेष स्टिकर लगाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता चंदन वर्मा का। चंदन, जिस तरह से परिवहन विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है जिसके तहत 25,000 गाड़ियों को चिन्हित कर उन पर लाल बत्तियां लगाने की तैयारी है, लेकिन उसके लिए पहले स्टिकर लगाया जाएगा और जब उन गाड़ियों पर स्टिकर होगा तभी उन पर लाल बत्ती या हूटर लगने की मंजूरी होगी। क्या जानकारी इसको लेकर? ठीक है, चंदन से शायद हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है जिसके तहत अब सिर्फ कुछ चुनिंदा गाड़ियों पर ही लाल बत्ती या हूटर लगाए जा सकेंगे। इस प्रस्ताव के तहत पहले इन गाड़ियों को अप्रूव होकर इन पर स्टिकर जारी होंगे। स्टिकर लगने के बाद ही इन गाड़ियों पर आप हूटर या लाल बत्ती लगा सकते हैं। तो परिवहन विभाग ने शासन को यह प्रस्ताव भेजा है जिसके तहत अब कुछ चुनिंदा गाड़ियों पर ही जब वो गाड़ियां शासन द्वारा अप्रूव होंगी उसके बाद ही उन पर हूटर या लाल बत्ती लगाई जा सकेगी। उसके लिए पहले ऐसी गाड़ियों के लिए स्टिकर जारी होगा। स्टिकर जब लगाए जाएंगे उसके बाद ही हूटर या लाल बत्ती लगना मंजूर होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत स्टिकर कुछ विशेष गाड़ियों के लिए जारी होंगे। स्टिकर लगे गाड़ियों पर ही लाल बत्तियां हूटर लग सकेंगे। एक बार सीधे रुक कर लेते हैं संवाददाता चंदन वर्मा का। चंदन, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है जी चंदन, आपको बता दूं, देखिए जी चंदन, जिस तरह से प्रस्ताव भेजा गया है परिवहन विभाग द्वारा शासन को, क्या कुछ इस प्रस्ताव में है? बिल्कुल, देखिए परिवहन विभाग की तरफ जो प्रस्ताव भेजा गया करीबन 25,000 जो गाड़ियां हैं, आरटीओ साथ ही साथ आरटीओ तमाम जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ी पर लाइट लगाने की जो बात सामने आई है इसको लेकर ये प्रस्ताव भेजा गया। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर जो बात कही थी उसके बाद तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना भी देखिए पुलिस को करना पड़ रहा था। कहीं पुलिस अगर हूटर उतार रही है तो उसके पुलिस को लाइन हाजिर किया जा रहा है, कहीं अब किसी अधिकारी की गाड़ी की लाल बत्ती उतार देती है तो उसमें भी पुलिस को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो परिवहन विभाग है उसने एक बड़ी एक पहल स्टार्ट करी है। उसने एक पत्र लिखा है शासन को पत्र लिखने के साथ ही साथ जो तमाम जो अधिकारियों की गाड़ियां हैं, जो उच्च अधिकारी यानी जो बड़े अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनकी जो गाड़ियों पर लाइट की जो बात सामने आ रही थी, ऐसे में कहीं ना कहीं ये साफ होता नजर आ रहा है। हालांकि 25,000 गाड़ियों की जो ये बात कही जा रही है, ये गाड़ियों का जो पत्र भेजा गया है, अब पत्र में जिस तरह से ये जो पत्र भेजा गया इसमें देखने वाली बड़ी बात होगी किस तरह से ये जो बत्ती की जो वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं अब कितनी देखने को मिलती है और पत्र जो भेजा गया उसमें कितनी संतुष्टि देखने को मिलती है। चंदन, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की यहाँ पर बात की थी, जिसके बाद कई अधिकारियों की गाड़ी से लाल बत्ती या हूटर भी हटाए गए, वहीं अब जिस तरह से परिवहन विभाग ने प्रस्ताव शासन को भेजा है और इस प्रस्ताव के तहत यही कहा गया है कि पहले ऐसे वीआईपी लोगों के लिए कुछ स्टिकर जारी होंगे, उसके बाद लाल बत्ती या हूटर लगाना जो है उनको अलाउड होगा। क्या माना जाए, कितने % चांसेस की शासन जो है इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेगा? बिल्कुल, देखिए मैंने लिया इससे पहले भी आपको बताया कि परिवहन विभाग ने जो पत्र भेजा है शासन, तो अब ये देखने वाली बात है कि शासन कितनी गाड़ियों से मंजूरी देता है। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो दिशा निर्देश था
वीवीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर। ऐसे में तमाम जो अधिकारी वो भी रोड पे उतरे थे, लेकिन तमाम तरह की दिक्कत का सामना भी अधिकारियों को करना पड़ रहा था। लेकिन जो अधिकारियों के द्वारा परिवहन विभाग ने जो 25,000 गाड़ियों का जो ये पत्र भेजा, अब इसमें कितने गाड़ियों पर मंजूरी मिलती है और कितनों पर मोहर लगती है, ये देखने वाली बात है रिया। बिल्कुल, यानी इसके लिए थोड़ा और इंतजार कि आखिर जिस तरह से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है उसके बाद शासन क्या इस प्रस्ताव को मंजूर करता है, और अगर मंजूर करता है तो क्या 25,000 गाड़ियों की जहां पर बात हो रही है, इन्हीं 25,000 गाड़ियों पर ये स्टिकर या लाल बत्तियां हूटर इनको परमिट मिलता है, उस पर सभी की निगाहें। चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव के तहत प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद कुछ स्टिकर जारी होंगे और स्टिकर लगे गाड़ियों पर लाल बत्ती या हूटर लग सकेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।